और जनाब आस्क द पवेलियन को बाकायदा शुरू करते हैं और ये पहला सवाल जो है जनाब ये आया है MM22 महमूद मीर 22 पूछते हैं आस्क द पवेलियन में लेट्स डू द ऑपोजिट ऑफ आगा एंड बाटा. Please ask my all-time favorite legends Wasim Akram and Waqar Yunus both about each other's captaincy. How do they rate each other as captains? ये है जनाब सवाल. आगा जी दसो. बड़ा नहीं ये बात नहीं भाई तूने तो नहीं भेजा है सवाल. पक्की बात है. किसी दोस्त को होगा तुम भेज दो यार. मैं वसीम भाई फैंटास्टिक कैप्टन, इसमें कोई शक नहीं है. ठीक है. You know, led Pakistan to 1999 World Cup final and of course 92 World Cup. He was a man of the match in the final. और you know जितना पाकिस्तान को सर्व किया, I think हम सब में इसको मिला भी लिया जाए तो उतना किसी ने नहीं सर्व किया. So he's been a superstar of Pakistan cricket. And कप्तानी में भी he was great. I mean we won series in India जो कि massive series होती है. We won. हम समझते हैं कि सिर्फ वर्ल्ड कप जीतना ही कमाल होता है. To get to the final of the World Cup, I thought that was a great achievement. बाकी there are so many series which we won under him. You know, had a lovely time playing under him. I think the best series we had fun together as well as a team was 96, 97 Benson and Hedges, Carlton and United series in Australia. We won that one. Yeah, we won the thing against Australia and West Indies थी और Australia final में नहीं था. I think first time we didn't qualify for the finals for for that. Yeah, it was a great series. And मैं वकार की कप्तानी में बहुत कम खेला हूँ, but I think जो most memorable series थी हमारी वो थी 2001 England series where Waqar performed as a skipper. He got 7 wickets at Leeds in one day and then we won the test series. I think हम lucky हैं दोनों. I suppose जब से हमने इंग्लैंड टूर किया, मेरा पहले 87 में था, वकार का 92 में था और इंग्लैंड इज ऑलवेज द होम ऑफ क्रिकेट. सो वहाँ हम जाके एज अ पाकिस्तानी, अब शुरू में 80s 90s की बात कर रहा हूँ, वी ऑलवेज वांटेड टू विन अगेंस्ट इंग्लैंड बिकॉज दे वर द वन जिन्होंने गेम ये बनाई थी यू नो. तो इट वाज ऑल सारी की सारी सीरीज जितनी मैंने उसने इंग्लैंड में खेली हैं, 4-5 मैंने खेली हैं, 4 आपने खेली हैं. हम सब एवरी टाइम वी वन द टेस्ट. ऑस्ट्रेलिया में भी 2002 में जो 3 वनडे, हाँ 3 वनडे जो हम विंटर्स में गए थे खेलने, where you were captain. Some great stories. So how do you rate him? How do you, on a scale of 1 to 10, where would you rate him as a captain? I think the way he performed, 8.5, 9, definitely. 8.5, 9. And how would you rate him from 1 to 10? 10 out of 11. 10 out of 10. ये बात. I have a question. आगा बाटा हो गया ना. आगा बाटा हो गया. नहीं शुरू किया था जनाब, फिर शुरू हो गया काम उस पास से. अच्छा जी, आप निकाल रहे हैं? मैं पूछ. मैं निकाल रहा हूँ एक जी. हे वसीम भाई, ये व्हाट्सएप पे आया है बिकॉज उसने क्वेश्चन पढ़ा नहीं जा रहा है इशफाक का. Hopefully Pakistan will face Australia in the semi-final now. Yeah, they are facing Australia. Justin Langer is an Aussie coach for some time now. You have played against him. How do you rate Langer as a head coach? He would like to know my opinion, yours and Waqar's. Look, I don't know, to be honest. I know as a player he was very rigid. He was very tough on the field. He was tough. He was tough. He's a black belt also. I heard in karate or something. He's very, and he loves picking a fight. Remember that. मुझे अभी भी याद है famous test match जिसमें उसने एज मारा था तो कह रहा था कि नहीं लगा, बाद में मान गया था. अपनी बुक में मान गया. बुक में नहीं, वैसे भी मान गया था. उसमें literally had a fight with me because इतनी टेंशन हो गई थी. We were winning and then this whole episode happened and we were all over them और मान नहीं रहे थे वो लोग और अंपायरों को भी गालियां पड़ रही थी. So much was happening. तो उसको, and I never thought कि इतना सा पिद्दा सा है. He's not a big guy. He's only what 5'6" इतना ही होगा, इससे बड़ा नहीं है. And he is a tough cookie. उसके साथ बीट भी हो ही जा रहा था. उसको आगे से जा कहते थे ना, और मुझे क्या कहता है, meet me in the pub, meet me in the pub, meet me in the. Why no, meet me here. उनके pub क्यों बाहर पार्किंग में मिलना मैंने. No, meet me in the pub. So he's a tough cookie. I'm not really sure about his कोचिंग. मिक्स बैग है अभी तक तो. टीम उसको उस टाइम मिली है जब टीम थोड़ी सी डामाडोल थी. कुछ सीरीज इसकी अच्छी भी गई हैं, कुछ बुरी भी गई हैं. ड्रेसिंग रूम से कोई इतने अच्छे न्यूज़ नहीं आ रहे. Aussie coaches players are very organized kind of coaches. So I think very rigid भी है, जैसे वकार ने बताया. और इसके खिलाफ अभी पूरे प्लेयर्स हुए भी थे थोड़े. ये पिछले दिनों 2-3 महीने पहले कंट्रोवर्सी चल रही थी इसके
खिलाफ के he is a bit too stubborn at times, he doesn't listen. But again, it's impossible to make cricketers happy all the time. मिसबा देखिए जैसे वकार भाई ने कहा ओवरऑल टफ टाइम था ऑस्ट्रेलिया पे जब वो आए, तो जो परफॉर्मेंसेस थी अच्छा एक दफ़ा खड़ा किया टीम को और दे स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल आफ्टर दैट। ठीक है, अभी रिसेंटली काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नीचे गई। सिर्फ कोच को नहीं आप कह सकते, प्लेयर्स पूरे प्लेयर अवेलेबल नहीं थे। बांग्लादेश की सीरीज़ हुई है, तो उस वजह से जब आप हारते हैं तो वो भी क्योंकि वो कल्चर ऐसा है ऑस्ट्रेलिया का कि वो हार को वो भी बर्दाश्त नहीं करते। वो इतनी ज़्यादा उनकी आदत है जीतने की, तो वो फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इवन प्रीवियस भी ऐसे हुआ, एशेस में जब परफॉर्मेंसेस नीचे गई तो सडनली सारा कुछ वहाँ पे पहले मिकी के साथ हुआ। तो थोड़ा सा कल्चर ऐसा है, बट ओवरऑल आई थिंक ठीक रही है परफॉर्मेंस। मुझे अब ज़ाहिर है मैंने काम नहीं किया उनके साथ, बट कंडीशंस की वजह से परफॉर्मेंसेस 19-20 में, बट ओवरऑल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ठीक जा रही है। वेरी गुड। उमर शहजाद का सवाल है और वो कहते हैं कि ये सवाल पांचों पैनलिस्ट के लिए है। ये है कि आपका फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है खेलने के लिए और क्यों? तो लेट्स स्टार्ट विद यू वहाब। फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड मुझे तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी ऑस्ट्रेलिया। आई लाइक लव प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। एंड सिडनी ग्राउंड कोई खास वजह? बिकॉज एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है वहाँ पे। सो लाइक यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग। वहाँ पे आप चले जाएं किसी भी ग्राउंड में, यू फाइंड एवरीथिंग आउट देयर। एब्सोल्युटली। वकार? I like playing at Lords. Lords. Yeah, Middlesex. That's just amazing. There are a couple of reasons. One is, of course, I performed really well there. Soft pitches होती हैं, soft ground है, and with my bowling action, it really suits me. और दूसरा ये है कि उसका जो slope है ना, which is अगर आपको देखा तो ground is little bit tilted to the right. वो 9 फुट tilted है from one corner to the other. तो वो जो coming from the pavilion end, it's a down slope, so it becomes very easy for me to run that way. Wasim? क्या क्वेश्चन था? Your favorite cricket ground and why? Obviously, House of क्या उसे कहते हैं, Lords is one of the great grounds. Everybody wants to play there, but I like MCG, Melbourne. Melbourne The cricket G, ground. yeah, the big G. Any particular reason? I think every time I played there, I performed. World Cup final, my highest one-day score there 86, and then I think 11 wicket haul. टेस्ट क्रिकेट में भी वहाँ है, फिर वनडेज में जब भी खेलों परफॉर्मेंस That was किया। back in 1989. wasn't it? 89, but it's just like it's just when you enter the MCG, 100,000 people, उनके साउथ स्टैंड में सिर्फ एक स्टैंड में 60,000 बंदा बैठता है। So it's different feeling altogether. Misbah? Lords. Lords आई also. थिंक फीलिंग ही डिफरेंट होती है। होम ऑफ क्रिकेट ऑब्वियसली काफ़ी और ग्राउंड्स हैं जहाँ पे मज़ा आता है। MCG है, क्वाइट एंजॉयड प्लेइंग जोहान्सबर्ग में, वॉन्डर्स में, ईडन गार्डन कलकत्ता जहाँ पे पहली टेस्ट सेंचुरी की, बट लॉर्ड्स में टॉप ऑफ द लिस्ट लॉर्ड्स। वहाँ पे खेल के जो फीलिंग्स होती हैं और फिर मेमोरीज भी, पहला मैच खेलना, पाकिस्तान के टेस्ट मैच जीतना और 100 करना, दैट वाज स्पेशल। राइट, उमर शहजाद ये। और मेरा फेवरेट ग्राउंड गवादर क्रिकेट स्टेडियम, गवादर। 2 मैचेस मैंने वहाँ पे खेले। बहुत ही खूबसूरत, दुनिया का खूबसूरत तरीन ग्राउंड्स में से एक है। और आपको याद होगा जब मैंने उसकी तस्वीरें ट्वीट की थी वहाँ पे खेलते हुए, तो ICC ने भी वो पिक की एंड दे सेड इफ देयर इज अ प्रिटियर ग्राउंड देन दिस देन शो अस, एंड द होल वर्ल्ड सॉ इट। इट इज अ स्पेक्टेकुलर क्रिकेट ग्राउंड, अ ग्रेट फैसिलिटी इन अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी in one of the most beautiful provinces of Pakistan, Balochistan. तो कभी भी आपको मौका मिले तो जरूर जाके देखिएगा गवादर क्रिकेट स्टेडियम। एंड विद Ground is a good size. very good, it's a full size Good ground. size, yeah. It's a full size ground. It's got breeze coming in from the seaside, and then you've got this huge flat mountain structure एक Yeah, तरफ, yeah. और उसकी वजह से जो हवा बनती है वहाँ पर वो दिन से लेके शाम तक चेंज करती है रुख पूरे का पूरा। एक साइड से छक्का मारना बहुत आसान है बिकॉज आधी भी लगती है तो कैरी हो जाती है। एंड द पिच इज वेरी नाइस, इट्स अ डिसेंट पिच। तो आपने वहाँ छक्का मारा? मैंने वहाँ पे एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, एक नहीं 2-3 छक्के छक्का, मारे। 2-3 जी, स्कोर किया आपने? 11? नहीं, मेरा ख्याल है पहली दफा मैं 36 किया था और दूसरी दफा में मैं सिर्फ जो है तमाशबीनी कर रहा था। मुझे फील्डिंग करने को मिली, बैटिंग मिली 2 नहीं। मैचेस हुए थे या 2 बारियां दी थी उन्होंने? 2 मैचेस हुए थे, 2 अलग अलग ओकेजन्स के ऊपर। एंड विद दैट वी गोना टेक अ ब्रेक। और
पहले मैं सोच रहा No, था I कि thought- look, पहले मैं सोच रहा था मैं look, ट्वीट I- ना करूं, I thought- फोन तुसी मुका कर देते लोग हैं। आई थॉट कि आप स्पेशल क्योंकि आप वहाँ डिग्निटीज को लेके गए थे, बड़े बड़े लोग गए थे, शायद क्योंकि आप लेके गए थे, अपने जहाज पे लेके गए थे, तो मैंने सोचा शायद उन्होंने आपको कर्टसी में 2 बारियां 3 बारियां दे दी। नहीं एक्चुअली जब मैं ये लेके गया था तो उस दफा सिर्फ फील्डिंग आई थी मेरी, मुझे मैंने बैटिंग ही नहीं दी किसी ने। एंड विद दैट वी गोना टेक अ ब्रेक राइट हियर ऑन द पवेलियन। व्हेन वी कम बैक मोर टॉक ऑन ए स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। अपने सवालात हमें भेज रही है #AskThePavilion। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, our continued coverage of the men's T20 World Cup. And with me in the Pavilion, Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah ul Haq and Wahab Riaz. Ask the Pavilion के सवालात का सिलसिला जारी है। अगला सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, ये है मोहम्मद ताहा का सवाल है। मोहम्मद ताहा पूछते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग डिड यू गाइज प्ले टेप बॉल क्रिकेट एंड हाउ एंड व्हेन डिड यू ट्रांजिशन फ्रॉम टेप बॉल टू हार्ड बॉल? अब आप में से कौन कौन खेला हुआ टेप बॉल? आई नो मिसबा यू प्लेड टेप बॉल क्रिकेट, Wahab has played, I played, Waqar bhai has played, Wasim you also played tape ball cricket? Lots. A lot. So Tennis ball. टेनिस बॉल टेप बॉल। वो कह रहे हैं कि कब आपने ट्रांजिशन की और कैसे की? ही वांट्स टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो कि इस ट्रांजिशन के बारे में सोच रहे होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैंने 5th मेरे ख्याल में प्राइमरी स्कूल से खेल रहा था, तो FSC तक खेलता रहा टेप बॉल क्रिकेट, टेनिस बॉल और टेप बॉल क्रिकेट। बीच में थोड़ी बहुत क्रिकेट बॉल खेली, ज़्यादा नहीं। स्कूल से एक आधा मैच खेल लिया, फिर कॉलेज में गया तो वहाँ पे भी एक आधा मैच, बट प्रॉपर खेलने शुरू की FSC के बाद। राइट, प्रॉपर FSC के बाद ट्रांजिशन कैसे हुई थी? किसी ने आपको बताया कि क्रिकेट के नेट्स पे जाएं, किसी ने बुलाया कुछ? मैं मियाँ वाली में जैसे स्कूल में प्रैक्टिस करते थे हम लोग, टेप बॉल खेलते थे, वहाँ पे जिमखाना क्रिकेट क्लब मियाँ वाली का नेट लगता था क्रिकेट बॉल का। उनके कुछ 2-3 प्लेयर जब रिटायर हुए तो वो इन सर्च ऑफ प्लेयर्स थे, तो उनको लगा कि ठीक है, मुझे उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस पे आया करो, और मैंने इस तरह बस 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस पे गया। जब मैंने क्रिकेट बॉल शुरू की खेलना, ये सब के लिए कह रहा हूँ जो यंगस्टर हैं कि टेप बॉल का अपना मज़ा है, लेकिन क्रिकेट बॉल जब मैंने खेलनी शुरू की तो वो टेप बॉल खुद ब खुद वो जो है ना उसका शौक, उसकी वो हट जाता है आपको। क्रिकेट बॉल का मज़ा ही इतना अलग है। वसीम? Do we have time? Yes. For you, No, I yes. started playing with tennis ball. स्कूल में क्रिकेट बॉल से कभी कभी खेलते थे कैथीड्रल स्कूल में, और मजंग में जब मैं बड़ा हुआ, जहाँ मैं छोटा था तो वहाँ नानी के साथ और माँ के साथ वहाँ रहता था, तो वहाँ पे टेनिस बॉल से खेलते थे हम। हमारी टीम का नाम था मलकाए क्या था, मलकाए हुकूमत बरतानिया। That was the name of the team, seriously. That's a good name actually. Yeah, we Malka used to Hukumat-e-Britaniya. play 6-a-side tournaments. Right. वो लाइटें जो सड़कों पे लगी होती थी, और मैं स्पेशल मुझे उठा लेके जाते थे लड़के के खेलने के लिए। जब मैंने मैट्रिक के पेपर दिए, तो उस दौरान जो 3 महीने थे, तब मैंने क्रिकेट बॉल से शुरू की। उससे पहले ऑन एंड ऑफ खेलता था मैं अपने बड़े भाई नदीम के साथ, मॉडल टाउन में रहता था क्लब से आके। एंड देन हमारे मोहल्ले में खालिद महमूद साहब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, कस्टम से खेलते थे। उन्होंने मुझे देखा टेनिस बॉल से खेलते हुए, तो ही सेट के तो क्रिकेट बॉल से क्यों नहीं खेलता। मैंने कहा ये स्टार्ट ऑफ 50 रुपये महीना कहाँ से दूंगा मैं, 200 तो मुझे मिलता है, उसमें पेट्रोल भी मैंने मोटरसाइकिल डलवाना होता है। आप टेनिस बॉल के किराए के प्लेयर थे? Yeah, I was 5-10 रुपये a game. So that Khalid Mahmood took me. मेरे पास तब बाइक नहीं थी, बाइसिकल थी। वो लाहौर मजंग से वो ग्राउंड वीनस सैनमे के पीछे MA कॉलेज ग्राउंड, वहाँ नेट लगते थे सारे 8-10, वहाँ खुद लेके जाते थे मुझे। 1 महीना वो खुद लेके गए एवरी डे। तो देन आई गॉट द हैंग ऑफ क्रिकेट बॉल। वहाँ पे भी सदीक खान मेरे कोच, साउथ खान, इन्होंने बड़ी हेल्प की। ये ऐसे लोग थे जो अपने पैसों से नए गेंद लेके आते थे रोज यार। दैट वाज इनक्रेडिबल। एंड 10-12 नेट लगे होते थे हर PNT जिम खाना, कृष्ण नगर जिम खाना, और सारे नेट, सब काफ़ी लड़के होते थे हर नेट में। 50-50 तो होते थे। अब गेंदों से ही बचते रहते थे, बट स्टिल वी लव्ड इट। Yeah, that was So it. that's missing now, isn't it? Oh, या big वो time. नेट That is लगाना, big time missing. जूनियर थे जाके नेट लगाते Club cricket भी थे। miss वो हो आधी पिच थी इस साइड पे, वो तरौंका करते थे पानी का, बिकॉज हम जूनियर थे ना, वो पानी का छिड़काव जैसे उर्दू में कहते हैं वो करते थे, विकेटें लगाते थे। एंड वी डिड दैट। और हम तो छोटे शहर से आए थे, हम तो वो पिच पे कड़ा भी मारते थे। कड़ा भी नहीं, वो
रिंग होता मिसबा यू एक्सप्लेन प्लीज कड़ा रिंग होता है, रिंग सा होता है वो, बिल्कुल लोहे तो का रिंग उसको- होता है जिसको वो पिच को वो ऐसे एक करता है जैसा कि वो करने के मुलायम लिए, लेवल करने के flat लिए, हो। नहीं लेवल करने के लिए, लेवल करने के तो उसको ऐसे ऐसे मारते थे, तो ऊपर से जो मिट्टी होती थी ना वो ऐसे कटती जाती थी ना, जो ज्यादा जो ऑफ बैलेंस हो, Off balance, तो बैलेंस हो, फिर भी उसमें टोए रह जाते थे, जिसकी वजह से आई गेंद लव द वर्ड टोए रह जाते थे टोए। अच्छा तो कब मैंने भी इसी टेप तरह बॉल से टेप बॉल इसी की तरह खेली, लेकिन किराए का प्लेयर नहीं था मैं। हमारा ये होता था बस शौकिया खेलते थे, और कभी ऐसा नहीं कभी पाकिस्तान का खेलने का तो सोचा ही नहीं ना, नेवर एवर थॉट दिस कि पाकिस्तान भी खेलेंगे। सही। इसलिए बस हम अपने मोहल्ली गली में मेरे चचा होते थे, उनकी टीम सादात क्रिकेट क्लब होती थी, उनके साथ खेलते थे, बसों के ऊपर चढ़, कभी मेलसी जा, कभी मुल्तान जा, कभी खानेवाल जा, कभी यू नो ऑल दिस स्मॉल टाउन्स हम लोग जाते थे, टूर्नामेंट्स खेलते थे। तो जब कभी टूर्नामेंट जीत लेते थे तो खुशियाँ मिठाइयाँ चलती थी, समोसे चलते थे, समोसे तो खैर यहाँ भी चलते हैं, लेकिन ये है कि इट वाज फन। आई मीन देन अब खुद ही पता नहीं लगा कब ये ऐसे क्रिकेट बॉल की तरफ आ गया हूँ, एंड देन इसका शौक चढ़ गया, एंड देन कैरी ऑन। एंड फॉर यू बहा बचपन में तो ऑब्वियसली कजन्स के साथ घर में, और फिर जब स्कूल था उसमें गैरेज भी- में? गैरेज में, और फिर तुम तो अभी भी एचएसएन में जब गया अभी भी बच्चे हो। हाँ जी थैंक यू। और फिर एचएसएन में जो था वो वहाँ पे, क्योंकि हमारे वो सिस्टम था कि क्लब्स हाउसेस खेलते थे आपस में, तो फिर मैंने वहाँ पे शुरू की थी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और उसके बाद फिर जो है And how much it used to be fun houses के matches? it हमारे was स्कूल में भी great. I still houses remember के कि matches वो- होते थे, yeah. मुझे वो जब खेलना था तो मैं, क्योंकि 1 से 5 जो था वो जूनियर स्कूल कहते थे उसको, एचएसएन में जो क्लासेस थी वो जूनियर्स थी, 6 to 8 जो था वो प्रेप था, Yeah. और फिर आगे 9 to 10 मैट्रिक और ए लेवल जो था उसको सीनियर्स कहते थे। तो हम लोग जब गए जूनियर से मैं सीनियर वो प्रेप में गया हूँ 6 में, तो मुझे नहीं पता था उधर हाउसेस का सिस्टम था। सो देयर वर 16 हाउसेस टू कम्पीट विद ईच अदर, और Yeah. एवरी स्पोर्ट्स, नॉट ओनली क्रिकेट बट every एवरी sport. स्पोर्ट्स। तो वहाँ पे जब मैं गया तो अब वो क्रिकेट के हो रहे थे, तो उन्होंने कहा यार ये क्रिकेट खेल रहे हैं, वो टीम बनानी। मैंने कहा जी मैंने भी खेलना है, मतलब हार्ड बॉल था। मैंने कहा मैं भी खेलूंगा सर, वो तो कहते हैं कि हमारी टीम पूरी है, कीपिंग आती है। तो मैंने कहा सर हाँ जी मुझे कीपिंग आती है। सो आई गॉट द चांस बाय डूइंग दैट विकेट कीपिंग। तो मैंने फिर 3 साल विकेट कीपिंग की वहाँ पे, और ओपन करता था हाउस के लिए। Were you a good keeper? Yeah, I was a good keeper. so Bingo. फिर उसके बाद जब कॉलेज में गया, मतलब जब इधर से एचएसएन से मैं गया, फिर जब आया प्रोफेशनली, तो फिर मैंने जो है वो बॉलिंग शॉलिंग, जो मेरा एक दोस्त था उसको देख के आई स्टार्टेड टू बॉल फास्ट और क्विक के। So आजकल के स्कूल्स में ये एक्टिविटी या जो भी पीरियड होता है once a day, एटलीस्ट हमारे स्कूल में once a week 2 घंटे में मिलते थे to play whatever sport you want. वसीम भाई, we all three of us and मिसबा, मेरा ख्याल मिसबा कौन से कॉलेज में गए हो अपना लाहौर में? आई वाज मियाँ वाली में मैंने जो एफएससी की है, पीएफ इंटर कॉलेज मियाँ वाली, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग था ये जो हाउसेस का सिस्टम था। मुझे याद है मेरी क्योंकि फैमिली गेम हमारी हॉकी थी, ओके, और हॉकी उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग भी थी मियाँ वाली में। मुझे याद है कि हमारी क्रिकेट हम हार गए हाउस, तो हमारे जो टीचर थे हाउस के वो बड़े परेशान बैठे हुए हैं, हार गए। तो हॉकी का मैं कैप्टन था, कॉलेज का भी कैप्टन। तो मैंने उनको कहा सर छोड़ें अब, जो क्रिकेट हारनी तो आप ये बताएं मुझे, दसो कि इन्होंने हॉकी द फाइनल इन्होंने गोल किन्ने करना। आई स्टिल रिमेंबर 7-0 हमने उनको हराया वो हॉकी। तो दैट वाज लाइक दैट, इतना पूरा Kids, कॉलेज आजकल के किड्स के पास ये है वहाँ। देखिए वसीम भाई, आई यूज्ड टू एंजॉय दैट अ लॉट बिकॉज एचएसएन में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज थी। मैं एथलेटिक्स भी करता था, हॉकी भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था, और हर स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट जो था ना वो बहुत ज़्यादा था। और आई स्टिल रिमेंबर के क्योंकि मौका मिल नहीं रहा था, प्रेप में आया था तो मैं 6th क्लास में था, वो 7 और 8 में सीनियर्स थे। तो मैंने कहा यार जिस तरह से भी चांस मिलता है ना बस खेल लो। सो मुझे अभी बल्कि वाकया याद है कि हमारा घोड़ा गली मरी, हम लोग स्कूल चैम्पियनशिप होती थी तो टीम बनी, और जो मेरे सर खालिद थे मेरे टीम के, वो क्या कहते हैं हमारे कोच भी थे क्रिकेट टीम के। तो अब मैं क्योंकि ओपन करता था, 6 में मैंने नीचे बारी की, 7-8 में मैं एज एन ओपनर खेल रहा था अपने हाउस से। तो जब मैं गया घोड़ा गली मरी गए तो उधर जो ग्राउंड था ना वो ऐसे था, बेसिकली था हॉकी का ग्राउंड, और उसके ऊपर मैट लगा के पहली दफ़ा मैटिंग में खेला था। उससे पहले मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि एचएसएन में तो पूरी प्रॉपर फैसिलिटीज़ थी। अब वो टीम जब मैंने ग्राउंड देखा तो वो ग्राउंड जब ऐसे था हॉकी की, उसमें ग्राउंड में खेल रहे थे,
तो रोलिंग जो था वो 2 था, डायरेक्ट लगेगा तो 4 था, रूल ऐसे बने हुए थे और सामने छिक्का था और पीछे ये वो। तो मैंने अपने सर को कहा सर मुझे ना ओपन करूँगा, कहते नहीं ये कोई हाउस की टीम नहीं है, स्कूल की टीम है, तो तुम नंबर 4-5 जाओगे। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने कहा सर मेरी तो बारी भी नहीं आएगी यहाँ पे बैटिंग में, कहते कोई बात नहीं। और आप यकीन करें मैंने आंसुओं के साथ रोना शुरू कर दिया ना। मैंने कहा कि सर ये तो क्या हुआ, बारी नहीं आएगी, बैटिंग कर तो वो ही नहीं आएगी, लेकिन मेरी बारी आ गई। 2011 के वर्ल्ड कप में भी यही तो नहीं किया था, वकार वही कह रहे थे आगे बात फाइनल में। सुने। अच्छा अब मैं जब कीपिंग कर रहा था तो आई हैव नो आइडिया अबाउट के गार्ड भी पहनते हैं। सो आई वाज, मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ कोई 96-97 का। आई मिस द बॉल And went. एंड गॉट हिट in the groin. इन द ग्रोइंग। और उस वक्त इतनी वो आती थी शर्म कि वो जब मेरे पास आया ना डॉक्टर हमारा फिजियो स्प्रे लेके, कहते किधर लगी, मैं कहा मेरे पेट पे। Thank God वो वहाँ ना स्प्रे कर देता है। बुनियादी तौर पे वहाब आपके ये वाले मसाइल जो है ये आपके बचपन से ही चल रहे हैं जो पाकिस्तान टीम का है। असल में कुछ कहानी लबे लबाब इसका ये है, खुलासा इसका ये निकालते हैं। But those are some great memories there. We used to play against them. I studied in Sadiq Public School Bahawalpur, which is another very good institute. बहुत छुपा हुआ है, लोगों को ज़्यादा नहीं पता भावलपुर में ये स्कूल है. I studied 3 years there. We used to go and play HSN back in the late 80s. So it was a We great, used great to also, competition. Government College Lahore, we used to also play against these guys a lot. HSonians? But the HSonians. But the team that we found, जो सबसे मुश्किल टीमें हमें लगती थी गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से, वो एक इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस, एक एमओ कॉलेज. These two teams were considered for some of the best teams. But इंटर कॉलेजिएट के अंदर खास तौर पे they were- बोर्ड के जब होती थी मैच वगैरह उसमें They were the most big-headed. difficult. They were big-headed. हाँ इनके एरोगेंस आते थे, बड़ी-बड़ी गाड़ियों से बड़े-बड़े बच्चे निकलते थे. तो हमें ये भी यहाँ पे भी हमें यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ रही है. यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है. अच्छा जनाब, इमरान रजा का सवाल है. इमरान रजा पूछ रहे हैं आज द पवेलियन में. मिसबाह आपसे सवाल है इमरान रजा साहब का. In a T20 format and especially in the UAE, how do you see the effectiveness of a finger spinner versus a wrist spinner? जी मिसबाह. इमरान रजा. देखें 3 डिफरेंट ग्राउंड हैं. अगर आप देखें तो अबू धाबी में मैं कहूँगा कि शायद फिंगर स्पिनर से ज़्यादा रिस्ट स्पिनर का रोल है. दुबई में इक्वली दोनों मुश्किल हो सकते हैं. फिंगर स्पिनर का भी रोल है. अगर थोड़ी सी भी पिच स्लो साइड पे जाती है तो जो तेज़ बॉल करता है फिंगर स्पिनर, जैसे जडेजा को आपने आखिरी मैच में देखा जिस तरीके से उनका बॉल टर्न हुआ उस स्पेस पे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है. बट रिस्ट स्पिनर की जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो 3 किस्म के बॉल कर सकता है. एक तो दोनों साइड पे स्पिन हो सकता है बॉल और सीधा बॉल भी. तो वेरिएशन की वजह से रिस्ट स्पिनर इज़ आई थिंक ऑलवेज अहेड इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस, चाहे यूएई में खेल रहे हैं जहां मर्जी खेल रहे हैं. And I think You know, ICC की before ranking you भी ये start, बताइए. जी सर. Saeed Ajmal is trending, so I just checked कि क्यों trend कर रहा Okay, है. that's a You good know one. why it's trending? Because पाकिस्तान में वो सारे लगे हुए हैं. इस बार हमने सईद अजमल का बदला लेना है. कोई पंजाबी फिल्म नहीं है. अगली टीम भी खेलने आई है. हम्बल, डाउन टू अर्थ. सईद अजमल ने कहा है? नहीं इसने नहीं कहा, पाकिस्तानी कह रहे हैं. 2010 That's का why बदला he's लेना. trending. वो कह रहे हैं कि वो सईद अजमल का बदला लेना है और उस टीम में अच्छा. हंसी भी नहीं है, तो अब जो है हम अपना okay. बदला लेंगे. I mean, कहते हैं कि हम्बल रहो, धीमे रहो, झुके रहो. पहले सेमीफाइनल तो होने दो, बदले बाद में ले लेंगे. पहले जीत तो जाएं. You know, I don't get it. एक्सपेक्टेशन अपनी खुद ही इतनी हाई कर लेते हैं और फिर टीम को उतना लताड़ते खुद ही. कसूर भी अपना, फिर लताड़ते भी टीम को. Obviously, it's a semi-final, but Yeah, it's a knockout thing. again, it's a game. I have a lot of questions जो कि सेमीफाइनल के हवाले से आ रहे हैं. तो कह रहे हैं कि जी अच्छा ऑस्ट्रेलिया से हम कभी नहीं जीते नॉकआउट में, तो अब क्या होगा और कैसे खेलें और क्या नहीं करें, वो नहीं करें, वो पहुंचते. इतने सारे सवाल हैं, सबका एक ही सवाल है बुनियादी तौर पे. इस पे बात कर लेते हैं, मगर Don't tell me it's a break. yes, it's time for another break on the pavilion. Keep watching A Sports and 10 Sports. मिलते हैं इस वक्फे के बाद. वेलकम बैक टू द पवेलियन. मैं हूं फखरे आलम और सुबह के बड़े अजीब से टाइम हो चुके हैं, सोने को थे. स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स एंड सुपरस्टार वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज. चारों जो हैं हशाश बशाश हैं, बिल्कुल नींद नहीं आ रही इनको, बिल्कुल भी थके हुए नहीं है.
खासतौर पे वसीम, ये शक्ल देखें अंदर वसीम की, इनका चेहरा ही सब कुछ बोल रहा है इस वक्त। ऑलराइट, इससे पहले कि हम आज की ब्रॉडकास्ट को खत्म करें, एक दो कुछ और सवाल है। मुस्तफा आबिद का सवाल है, वकार आपसे है ये सवाल। हमारी डील क्या है? हमारी डील क्या हुई थी? कहा था एक दो सवाल होंगे यार, ये क्या मतलब हुआ? हमारी डील क्या हुई थी? डील हुई थी एक दो सवाल करेंगे, आपने कहा था मुझे चलो, break में करो। कि यार है ना आज सब चलो, लगे कि ऐसे टुर गए हैं। खा के आपने बोला था मुझे बीच में कि लगेगा यार लोगों को बिल्कुल ही सच्ची गल्ला नहीं करी Yeah. कम ऑन गो। अच्छा, आपसे सवाल है, माय क्वेश्चन फॉर वकार यूनुस, इन योर years of coaching, who you think is the most skillful fast bowler of Pakistan that you have coached? आपके लिए। They have been few, isn't it? Yeah, but you have to. The one sitting next to me, that's one of them. ठीक है। Amir is one of them. Shaheen is one of them. Naseem Shah is there. I mean, there are so many. I mean, किसी एक का particular नाम लेना, I think it's wrong. They're all very talented. जी। Upcoming में जो आने वाले वक्तों में वो probably Naseem Shah is another one who's just waiting for his turn.